So hello everyone. So in this video lecture, I am going to explain you a very important Java interview question. So the question is, what is method overloading? Overriding. Sorry, it is not method overloading. It's method overriding. So basically, method overriding, we all know what is the definition. It's not a big deal about it. What is method overriding? So So basically, nowadays they are not asking just is what is meaning of method overriding. Okay, or tell the definition. Okay, on the basis of definition, they are giving some code and then asking some other questions based on that. Okay, so I will explain you that also. So what are different questions they may ask you on method overriding? So basically, for method overriding, you should know that four things. First thing is method signature should be same. Okay, so I will write here that what is the most few important things I will write here. So I will write okay. Font is not good looking, means we'll give some simple font. Yeah, this is the simple font. So for method overloading, signature must be method signature. Signature means method signature must be same. Okay, uh, the method which is present in parent class as well as the method which is present in child class, both of them should have same method signature. Okay, method signature means name of the method. What is meaning of method signature then? So method signature let me write here. In method signature means name of the method, then method parameters. Okay, so first thing is that this is the prerequisite. Second is that the order, not only parameters should be same, order of parameters must be okay. Suppose first parameter is int parameter and next one is a float and another one is a double, or another, suppose first one is a int and another is a string. So in child method also, the parameter, first parameter should be int and next parameter should be string. Okay, then the third, now the third is what is the third important? The two classes must have inheritance between them. Okay, two classes must have inheritance. Okay, so these are the few things which you must know about the method overriding inheritance. So here I think n is forgotten. So the fourth question, fourth most important thing is, what can be the fourth most important thing? Method parameters should be same. Okay, method parameters should be same. Parameters should be same. Okay, next, what can say about the access modifier? Access modifier, about the access modifier, that the scope of access parameter used for child method should be wider than the scope, or say of scope of a parent method. Okay, so scope of access parameter, access modifier
must be same or wider. Okay, means suppose your parent parent method have parameter protected. Okay, suppose protected is the access modifier used for parent method. Then child method, which child method can use? Child method कौन कौन से एक्सेस मॉडिफायर्स यूज कर सकती है? कौन से पब्लिक यूज कर सकती है या फिर प्रोटेक्टेड ही यूज कर सकती है? पर याद रखना यहाँ पे इट कैन नॉट यूज प्राइवेट एंड प्राइवेट इन दिस केस. ओके, प्राइवेट एंड और कौन सा होता है डिफॉल्ट. ये चाइल्ड मेथड के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते. ओके, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, स्कोप जो है वो कम हो जाता है. ओके, सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. और हम इसके बारे में भी कह सकते हैं कि उसका ये क्या होना चाहिए, मेथड एक्सेप्शन अगर वो थ्रो कर रहा है तो उसके बारे में भी कह सकते हैं कि अगर ये जो आपकी पेरेंट क्लास मेथड कोई भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रही है तो चाइल्ड क्लास मेथड को भी कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं करना चाहिए. या फिर अगर एक्सेप्शन थ्रो भी कर रही है तो सिर्फ अनचेक्ड एक्सेप्शन ही वो थ्रो कर सकते हैं. ओके, तो ये कुछ प्री रिक्विजिट है. ठीक है, तो इसके बाद हम कोडिंग के ऊपर जाते हैं. सो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने बनाया है. तो कोडिंग में क्या कहेंगे कि देखो ये एक क्लास है. ओके, यहाँ पे क्लास ए है. ठीक है, और इस क्लास में एक मेथड लिखी है जिसका नाम शो है. ठीक है, और ये जो मेथड है, हाँ, तो ये इसको थोड़ा कलर कर लेता हूँ, डार्क कलर कर लेता हूँ. ओके, ये शो मेथड है. और इसमें क्या है, शो मेथड में एक ही स्टेटमेंट है, प्रिंट है. बाद में क्लास बी है यहाँ पे, और ये क्लास बी क्या करता है, एक्सटेंड्स क्लास ए. ओके, मतलब अभी इन दोनों में इनहेरिटेंस हो गया. और ये शो मेथड है, वो शो मेथड क्लास बी जो है वो ओवरराइड कर रहा है. ठीक है, तो अभी मैंने वो क्या करेंगे, एक तीसरा क्लास भी दिया है यहाँ पे. ओके, यहाँ पे प्रिंट बी होना चाहिए. क्लास बी में क्या हो रहा है, जो मेथड है वो क्या कर रही है, बी को प्रिंट करवा रही है. क्लास ए में प्रिंट ए कर रही है, क्लास बी में प्रिंट बी कर रही है. अभी यहाँ पे और एक क्लास है जिसका नाम टेस्ट क्लास है. उसमें यहाँ पे देखो ये लाइन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है. ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट से शो मेथड को कॉल किया है. अभी वो पूछेंगे कि बताओ आउटपुट क्या है इसका. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नहीं है. आउटपुट क्या होगा आपको आता भी रहेगा. ठीक है, मगर ये असल क्वेश्चन नहीं है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है उनका कि व्हाट इज द आउटपुट. ठीक है, सो आउटपुट क्या होगा, ऑब्वियस है प्रिंट भी होगा क्योंकि चाइल्ड क्लास मेथड कॉल हो जाएगी. बराबर है. ठीक है, अभी ये हुआ फर्स्ट मतलब क्या कहते हैं इसको, ये होगा फर्स्ट क्वेश्चन. अभी सेकंड क्वेश्चन देखो क्या पूछ सकते हैं. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में वो क्या पूछेंगे, अगर चाइल्ड क्लास में शो नाम की मेथड है ही नहीं, सिर्फ कौन से क्लास में, पेरेंट क्लास में ही शो नाम की मेथड है. इफ देर इज अ शो मेथड ओनली प्रेजेंट इन द क्लास ए, देन व्हाट इज योर आउटपुट. ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा कि बेसिकली चाइल्ड क्लास में उस मेथड को ढूंढेगा, अगर नहीं है तो पेरेंट क्लास में चला जाएगा और फिर हमें क्या आउटपुट मिलेगा यहाँ पे. ओके, यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा प्रिंट ए. ओके, तो ये यहाँ पे प्रिंट ए. दूसरे केस में क्वेश्चन पूछेंगे
कि बी में अगर वो मेथड नहीं है तो क्या आउटपुट होगा, तो प्रिंट ए आपका आउटपुट होगा। ठीक है, अभी और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर पेरेंट क्लास में मेथड है ही नहीं, पेरेंट क्लास डू नॉट हैव शो मेथड, SHOW, ओके, शो मेथड, तो आउटपुट क्या होगा। ओके, तो इस केस में देखना आउटपुट जो होगा वो कंपाइलर एरर होगा। ठीक है, आउटपुट आएगा ही नहीं, कंपाइलर एरर आएगी। क्यों एरर आएगी, क्योंकि पेरेंट क्लास रेफरेंस से हम चाइल्ड क्लास की मेथड को हम कॉल नहीं कर सकते। ओके, तो ये 3 सिनारियो है, इसके ऊपर अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे मुझे इम्पोर्टेंट लगता है थर्ड वाला, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि अगर चाइल्ड क्लास में कोई मेथड है तो उसको कॉल कर लेगा, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, अभी सेकंड में आउटपुट प्रिंट है कैसे मिल रहा है, इफ चाइल्ड क्लास डू नॉट हैव शो मेथड। ओके, तो ये ऐसे इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछे जा रहे हैं। एक इंटरव्यू में मुझे ऐसे पूछा गया था, इसलिए मैंने सबके साथ शेयर करना मुझे अच्छा लगा, इसलिए शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और एक स्लाइड बना सकता है हम, और इसमें हम क्या बता सकता हूँ मैं, और एक स्लाइड बना के एक और स्लाइड बनाता हूँ और इसमें कुछ और बातें बताता हूँ। तो इसमें मैं ये बता सकता हूँ कि अगर कौन कौन सी मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट मेथड रहेगी, उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। फिर स्टैटिक मेथड रहेगी, उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। और फाइनल मेथड रहेगी, इन तीनों को हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। ओके, तो प्राइवेट मेथड को क्यों ओवरराइड नहीं कर सकते ये भी पूछ सकते हैं, स्टैटिक मेथड को क्यों ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए यहीं तक।